اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، جو اس کرۂ ارض کو بنانے والا، اس کو رنگ برنگی نباتات سے سجانے والا اور مختلف داستانیں برپا کرنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا پاکستان سے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے، حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں۔ صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہیں اور عجائب طب سے ہیں۔ آج ناظرین کرام اس ویڈیو میں ایک عجائب طب واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہے اور بالکل عجائب طب ہے۔ آپ اس دنیا کی، اس کرۂ ارض کی جب تاریخ دیکھتے ہیں تو اس کرۂ ارض پر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی تاریخ ملتی ہے۔ انواع و اقسام کی تاریخیں جو ہیں، انسان ان کو دیکھتا ہے، ان کے متعلق سوچتا ہے اور ذہن میں لاتعداد سوال اٹھتے ہیں۔ ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جن کا کچھ سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، کچھ سوالوں کا جواب حضرت انسان کو نہیں ملتا، اور انسان چونکہ ہر لحاظ سے بے بس ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، جو مختلف داستانوں کو برپا کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک جڑی ہے جس کی میں آپ کو بات بھی بتاتا ہوں، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرضی بھی کرتا ہوں۔ اس نباتات کی تاریخ جو ہے ناظرین کرام بہت ہی قدیم ہے۔ جب سے حضرت انسان اس کرۂ ارض میں آیا ہے، اس سے پہلے سے یہاں پر درخت اور لاتعداد نباتات کی اقسام جو ہیں یہ موجود تھیں۔ اس کے علاوہ انسان کی تاریخ جو ہے نہایت ہی قدیم ہے۔ جب سے انسان اس کرۂ ارض پر بود و باش پانے لگا، پھلنے پھولنے لگا، اس کی نسلیں جو ہیں بڑھنے لگی، اس کی آل اولاد بڑھنے لگی، اس کی تاریخ نہایت ہی قدیم ہے۔ مکمل اس کے متعلق صحیح جاننا محال ہے، ناممکن سی بات ہے کہ اصل جو تاریخ ہے حضرت انسان کی وہ کیا ہے۔ صرف قیاس آرائیاں ہیں کہ اتنا عرصہ ہوگا یا اتنا عرصہ ہوگا، یا یوں ہوگا یا یوں ہوگا، لیکن صحیح اندازہ لگانا بالکل محال ہے۔ اور حضرت انسان کے ساتھ جو داستانوں کی طریقے ہیں وہ بھی نہایت ہی قدیم ہیں، چونکہ انسان کے ساتھ مختلف واقعات ہوئے ہیں، پیش آئے ہیں، تو مختلف وجہ سے جو داستانیں جڑی ہیں وہ نہایت ہی قدیم ہیں۔ تو ناظرین کرام، جب ہم قدمہ کی طرف دیکھتے ہیں، قدمہ کا معنی قدیم کی جمع ہے، تو جب ہم قدمہ کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ان کے متعلق سوال بھی اٹھتے ہیں۔ کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ چونکہ ایک علمی بحث ہے، تو ناظرین کرام یہ کرۂ ارض جو ہے، اس کرۂ ارض کو رب العزت نے لاتعداد نباتات سے سجایا، رنگ برنگی اور مختلف
लातदाद मखलूक़ात को बसाया, जिनमें इंसान अशरफुल मखलूक है। बकाया मखलूक़ात जो हैं वो तमाम की तमाम हज़रत इंसान से अदना है। कुछ मखलूक़ात हैं जो हमें नज़र नहीं आती, सिर्फ उनके मतलब हमें बताया गया है, फरमाया गया है कि हमारा उन पर ईमान है, जैसे फरिश्ते, जिन या ऐसी मखलूक़ात। कुछ ऐसी हैं जो हमें नज़र आती हैं, जैसे ऊँट, हाथी, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ, या जो भी हमें नज़र आता है, इनकी भी तारीख़ निहायत ही कदीम है। हो सकता है हज़रत इंसान से पहले की हो, यानी हज़रत इंसान के अलावा जो दूसरी मखलूक़ात हैं उनकी भी तारीख़ निहायत ही कदीम है। हो सकता है हज़रत इंसान से पहले की हो, लेकिन हज़रत इंसान की जो तारीख़ है, ये इसके मतलब सही जानना बहुत ही मुश्किल है, न महाल है। तो नाज़रीन, इस कुरा अर्ज़ पर बहुत सारी दास्तानें हुई हैं। पूरी कुरा अर्ज़ जो है, पूरी ज़मीन जो है, ये मुख्तलिफ दास्तानों से रंगीन है। कहीं पर बोदोबाज की दास्तान है, कहीं पर कत्ल गारत की दास्तान है, कहीं पर जंगी जनून की दास्तान है, कहीं पर भाईचारे की दास्तान है, कहीं पर लाजमालिया की दास्तानें हैं, कहीं पर खुर्दोनोश की दास्तानें हैं, कहीं पर जिंदा हो जाने की दास्तानें हैं, कहीं पर इसके हलाक हो जाने की दास्तानें हैं, कहीं पर नाज़रीन मुख्तलिफ अनवाओ क़िस्म की जो दास्तानें हैं हज़रत इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, और पूरी पूरा अर्ज़ जो है इन दास्तानों से रंगीन है। नाज़रीन, उन्हीं दास्तानों में से एक दास्तान टिला जोगियाँ की मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक मालजे का एक लाजवाल वाक़या मैं आपकी खिदमत में करूँगा, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कदीम अलाज मालजा जो था वो इतना आसान क्यों था, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि निबातात से, जो कि आज भी तमाम तरीक़ा इलाज की जो अद्वियात हैं इन्हीं निबातात से तैयार होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज हम दौरे जदीद में जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो आसमान से उतरती हैं या किसी ज़मीन की और जो तरीक़ाकार है उससे तैयार होती हैं। नहीं, आज भी अद्वियात इन्हीं निबातात से तैयार होती हैं, और मैं यूँ कहूँ कि 100 में से अगर 95% इन निबातात से तैयार होती हैं। बकाया 5% जो हैं मुख्तलिफ ज़राए से तैयार होती हैं। लेकिन ये एक मसलमा हकीकत है कि तमाम अद्वियात जितने भी तरीक़ा इलाज जो हैं राज हैं उनमें तमाम की अद्वियात जो है निबातात से ही तैयार होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस निबातात की हकीकत भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और टिला जोगियाँ की एक दास्तान मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन, मैं बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि टिला जोगियाँ ज़िला जेहलम, जो कि पंजाब का एक ज़िला है, हमारे पाकिस्तान का सूबा पंजाब जो है इसका एक ज़िला है, इसके चंद फासले पर एक मुकाम आता है टिला जोगियाँ। आज वहाँ पर जो है वो तमाम जो जगह है वो आर्मी के कंट्रोल में है। तो यहाँ मशहूर है टिला जोगियाँ पर एक साधु, एक सन्यासी, एक जोगी ने पड़ाव किया, और उसने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी दराज हिस्सा जो है, लंबा हिस्सा इस टिले पर गुजारा, जिसको हम बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से जानते हैं। मैं बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि असल उसका वतन जो है वो इंडिया में गोरखपुर था। यहाँ वो आया और 1.25 लाख उसका चेला था। इस बात से, इस हकीकत से नज़र नहीं चुरा सकती। आज ये चीज़ें हमें सिर्फ दास्तान लगती हैं। जब हम इनकी तरफ देखते हैं, इन चीज़ों का मुतालिया करते हैं या इन चीज़ों के मतलब सुनते हैं, तो हमें ये दास्तानें बड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि क्या ऐसे भी इंसान थे, क्या ऐसे भी लोग थे, क्या ऐसा भी हो सकता है। हमारे ज़हन के अंदर ये सवाल एक महज सवाल बन के रह जाते हैं। बेशतर का हमें जवाब मिल जाता है, बेशतर का नहीं मिलता। तो नाज़रीन, इस टिले के ऊपर एक साधु ने, एक जोगी ने पड़ाव डाला,
जिसको बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से लोग जानते हैं। 1.25 लाख उसका चेला था। 1.25 लाख इंसान को उसने जोग दिया, उनको जोगी बनाया। मुख्तलिफ अनवाओ कसाम के अलूम से उसने रोशनास कराया, और जो कि इस हिस्से में आते हैं, ध्यान हो गया या जो भी अलूम थे उनसे उसने रोशनास कराया। ख़ास तौर पर अल्लाह मालिया की उसे ख़ास जो दस्तरें हासिल थी, हम उसका तज़किरा करेंगे। उसके मज़हब से हमें कोई लेना देना नहीं कि उसका मज़हब क्या था, लेकिन जो उसे इलाज वालजा में महारत हासिल थी, इन बातात को जानने और इनसे इलाज की जो उसे महारत हासिल थी, हम उसका ज़रूर तज़किरा करेंगे और करते रहेंगे। तो नाज़रीन किराम, मैं बेशतर इस चीज़ पर बात कर चुका हूँ, और अच्छी बात बार बार करनी चाहिए, जितनी भी हो सके वो कम है। तो नाज़रीन किराम, 1.25 लाख उसने चेला था जिसको उसने जोग दिया और उनको साधु सन्यासी बनाया, और उसने मुख्तलिफ हिंदुस्तान, मौजूदा हिंदुस्तान जो है और मौजूदा जो पाकिस्तान है, नाज़रीन किराम, उसने मुख्तलिफ, चूँकि उस वक़्त ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वजूद नहीं था, तमाम हिंदुस्तान ही कहलाता था। उस वक़्त उसने मुख्तलिफ मुकाम के उसने सैर की, बहुत सारी जगह पर उसकी दास्तानें आज भी मौजूद हैं। लेकिन इस वक़्त मैं और भी दास्तानें उसकी जानता हूँ, उस बाबा जी के नाम से जो जुड़ी हैं। तो इधर हमारे पास एक सियालकोट के पास एक मुकाम आता है रोडस, वहाँ भी उसकी एक दास्तान है पूरन भगत के नाम से। तो और भी कई दास्तानें हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगह पर उसने क़याम किया और उसने सफ़र किए, और उसने मुख्तलिफ उसकी दास्तानें हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि एक वीडियो में मैं तमाम की तमाम तो नहीं समा सकती, तो मैं ख़ास एक बूटी का तज़किरा करूँगा, और उस बाबा जी के जो उसे महारत हासिल थी मैं उसका तज़किरा करूँगा। नाज़रीन किराम, जब उसने वहाँ पड़ाव डाला तो मुख्तलिफ लोग उसके पास आने लगे, मुख्तलिफ अलूम से रोशनाई चाहते थे। तो बाबा जी गुरु गोरखनाथ ने बहुत सारे अलूम उनको सिखाए, जिनमें जड़ी बूटियों का सरफ़रिस्त था और इलाज मालजा का सरफ़रिस्त था। तो बाबा जी के आगे एक जज़ाम का मरीज़ लाया गया, जो कि पूरा जिस्म उसका गड़ सल गया था, और ऐसा लगता था कि उसको किसी ने जहर दे दिया गया हो। इस नवैयत का जहर है कि तमाम जिल्द उसकी मतवरम हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने ज़िंदगी के दिन गुजार रहा था। तो बाबा जी के पास लाया गया, तो बाबा जी ने उसके लिए बहुगुनी, ये आप देख लें, मैं इसका तज़किरा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इस बूटी की पहचान मैं इसके क्लिप भी आपको डालता हूँ, जो कि फूल से आप इसको पहचान सकेंगे। नाज़रीन किराम, बहुगुनी उसके लिए तजवीज़ की, बाद में आकर हमें इसका इस्तेमाल जो है, ये हकीम अजमल ख़ान दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो तरीक़ाकार इलाज में, उसमें भी इसका इस्तेमाल मिलता है। बाबा जी गुरु गोरखनाथ ने अपने चेलों से कहा कि बहुगुनी जो है वो खुशक करके 1 तोला बहुगुनी रोज़ाना सुबह और शाम, सुबह भी 1 तोला, शाम को भी 1 तोला, यानी 10 ग्राम के लगभग बहुगुनी लेकर उसमें 3 ग्राम मिर्च स्याह डालकर इसको भिगो दिया जाए दोनों को, और उसका जलाल लेकर, उसका पानी लेकर मरीज़ को पिलाया जाए। तो नाज़रीन 40 दिन में उस मरीज़ को मुकम्मल तौर पर सेहत हो गई। और बाबा जी ने कहा कि इसी का पाउडर जो है, चूरन जिसको पाउडर कहते हैं, इसी का पाउडर जो है वो करके सरसों के तेल में मिलाकर तमाम ज़ख्मों पर लगाया जाए। तो 40 दिन में उसको मुकम्मल सेहत हो गई। ये बहुत सारे उसके चेलों ने, बहुत सारे सन्यासियों ने, साधुओं ने इसको लिखा है, बहुत सारी कुतुब में ये वाक़या मौजूद है। तो नाज़रीन किराम, अब हम बात करते हैं कि बहुगुनी है क्या। ये एक तुलसी की फैमिली से इसका ताल्लुक है। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, तुलसी की फैमिली से इसका ताल्लुक है, और इसको अकाकिरी इस्तिलाह में
नगंद बाबरी कहते हैं, और तमाम जोगी सन्यासी इसको बहुगुणी कहती हैं, यानी बहुत गुणों वाली। हम जमाने की जिद्दत के धोखे में आकर इन तमाम चीज़ों को भूल गए, और इसको तमाम सन्यासी वैद जोगी इसको बहुगुणी कहते हैं। और पाको हिंद की मशहूर निबातात है, जो कि आम पानियों के किनारे, बंजर ज़मीनों में और सड़कों, खेत खलिहान के किनारे ये कसरत को देखने को मिलती है। तो नाज़रीन, इसका जो मशाबत होती है, कि काफ़ी हद तक इसकी जो ये डली जो है, ऊपर जो तना है, इसका जो बाली है, ये पुटकंडे से मशाबत रखती है, लेकिन ये पुटकंडा नहीं है। उसी तरह इसको उल्टे दाने होते हैं जिस तरह पुटकंडे को हैं, लेकिन ये कपड़ों से चिमटती नहीं है। इसको सफ़ेद फूल आता है। नाज़रीन, इसको मुख्तलिफ ज़बानों में, क्योंकि इसका पौधा लगभग 9-10 इंच ऊंचा या 1 फुट से 1.5 फुट तक बुलंद हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं, ये जड़ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इसकी मुशाबत कर लें। ये मुकम्मल तौर पर मैं इसके क्लिप भी इस वीडियो में डालूंगा, आप देख सकेंगे। तुलसी या रिहान की तरह के, दरअसल ये तुलसी की एक किस्म है, फल फूल बल्कि रिहान की तरह, लेकिन ऊपर की तरफ कुछ उठे हुए। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें ना आप, इसके फल फूल ऊपर की तरह उठे होते हैं, जिस तरह के पुटकंडे को होते हैं, लेकिन पुटकंडे से काफ़ी मुख्तलिफ होती है इसकी शक्ल सूरत। तो नाज़रीन, इसको सूंघने से हल्की सी इसमें खुशबू आती है, और पत्ते, तुखम, मुखरियां, बालियां तुलसी की तरह होती हैं। इसको नगंद बाबरी कहा जाता है। ये मौसम बरसात में पैदा होती है। माह अप्रैल में सफ़ेद फूल लगते हैं और मई में बीज पक जाते हैं। जून में यह पौधा खुश्क हो जाता है। मजाज इसका गर्म व खुश्क दर्जा दोम है। मसफ़ा खून, तरिया के समूम, मोहलल आराम, दाफ़ा तप, हर किस्म। नाज़रीन, ये बूटी जो है, तमाम साधु जोगी सन्यासी इस बूटी को बड़ी तरजीह देते थे। वो कहते हैं कि ये बूटी जो है ज़बरदस्त मसफ़ा खून है, तमाम जहरों का तरियाक है, तमाम अमराज जिल्दिया को दूर करने वाली, यानी तरिया के मर्ज जिल्दिया के लिए है। और नाज़रीन, मोहलल आराम, तमाम आरामों को, जल्दी आराम हो या अंदरूनी आराम हो, उनको दूर करने के लिए, और हर किस्म के बुखार, तैया, चौथिया बुखारों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कराते थे। इस्तेमाल वो इस तरह कराते थे, नाज़रीन, इसको उखाड़ कर ज़मीन से किसी सायेदार जगह में रख दिया करते थे। जब ये खुश्क हो जाती थी तो इसको पाउडर करके या मोटा मोटा कूट कर पानी में भिगो कर इसके अंदर मिर्च स्याह जो है, फिल्फिल स्याह शामिल करके ये इसका पानी पिलाया करते थे। पाउडर की सूरत में भी नाज़रीन इसको इस्तेमाल करते थे। इसका चूरन यानी पाउडर कर लिया करते थे, और मिर्च के स्याह का साथ पाउडर करके तो नाज़रीन मरीज को पानी के साथ खिलाया करते थे, हर किस्म के बुखारों को दूर करने के लिए। और ये एक ख़ास चीज़ है नाज़रीन। इसको तस्फिया खून की गरज से अमराज फसाद खून, मसलन जजाम, खारिश, उराम, सबूर, इन तमाम जिस्म पर जो सबूर निकल आते हैं उनके लिए और बरस में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। नकूब बनाकर इसका आवे जलाल लेकर चंद अला अदद मिर्च स्याह बरीक शुदा करके पिलाते हैं, या चंद अदद मिर्च स्याह के हमरा पानी में पीस कर शीरा निकाल कर देते हैं। तब राबा में बतौर सफूफ शीर बुज के साथ इसको इस्तेमाल कराते आए हैं। नाज़रीन, ये बरस जुज़ाम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी तौर पर इसको खिलाते भी हैं और बरस के दागों पर इसका लेप भी कराते आए हैं रोगन सरस के साथ, रोगन शरीफ के साथ, यानी सरसों के तेल के साथ। तो नाज़रीन, मिर्च स्याह वाला नुस्खा सलानुर रहम सतरी रोग में भी इसको इस्तेमाल कराते हैं। ख़ास इसका इस्तेमाल जो मैंने देखा है तमाम साधु सन्यासियों ने लिखा है, ख़ास तौर पर हकीम अजमल खान दहलवी, उनके इलाज मुआलजे में बतौर इसको शामिल किया गया और कसरत के साथ इसको इस्तेमाल कराते आए थे। ये ऐसे गालबन 10-20 साल पहले आम पंसारों से दवा फरोशी मिल जाया करती थी, लेकिन
लोगों का चूंकि रुझान इसका इस तरफ बहुत कम हो गया है, तो अब ये बाज़ारों से नहीं मिलती और इसको बाहर से ही खेतों खिलान से ही लेना पड़ता है। इसके दायमी इस्तेमाल से इंसान समूम हैवानी व नबाताती से महफूज रहता है। यानी इसका अगर मुसलसल इस्तेमाल करता रहे तमाम जहरों से इंसान महफूज रहता है, चाहे वो किसी जानवर के कटने का हो या कोई खुर्दनी तौर पर खाया जाए तो उससे इंसान महफूज रहता है। तो नाज़रीन, मौलन आराम होने की वजह से जल्दी आराम में इसको कसरत से इस्तेमाल कराते हैं। तमाम वैद जोगी सन्यासी इसको इस्तेमाल कराते आए हैं। तो नाज़रीन, मकदार खुराक इसकी 7 ग्राम से 1 तोला तक है। तो ये दास्तान टिला जोगियाँ में इसका जो चूँकि जिक्र आया है, दास्तान टिला जोगियाँ से ही मैं आपकी खिदमत में ये वीडियोज़ करूँगा। तो चूँकि बाबा गुरु गोरखनाथ का इस बूटी को इस्तेमाल कराने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। उसने बहुत सारी यहाँ पर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कराया और उसको ख़ास जड़ी बूटियों के इस्तेमाल में ख़ास जो महारत हासिल थी, उसमें नाज़रीन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस बूटी का भी कसरत के साथ जिक्र उसके शागिर्दों ने, चेलों ने किया है और इसका कसरत के साथ बाबा गुरु गोरखनाथ जी जो थे इसका इस्तेमाल कराते आए हैं। तो नाज़रीन, ये थी वो दास्ताने टिला जोगियाँ जो कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।